سینٹ کی 37 نشستوں کے انتخاب کے لیے کل میدان سجے گا۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شروع ہو کر بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد 2، سندھ 11، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے 12 سینیٹرز منتخب ہوں گے۔ پنجاب میں 11 سینیٹرز پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ ایوان بالا کے انتخابات کے منصفانہ اور شفاف انعقاد کے لیے نگراں کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی الیکشن کمیشن، FBI، نیب، اسٹیٹ بینک اور ناظرہ کے نمائندوں پر مشتمل۔ کمیٹی ہر قسم کے انتخابی بدعنوانی کے تدارک کے لیے کام کرے گی۔ الیکشن کمیشن وزیر اعظم عمران خان سے ارکان قومی اسمبلی کی ملاقاتیں۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقاتوں میں اراکین پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کے ویژن پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ عوامی فلاح و بہبود کے امور پر بھی گفتگو۔ عالمی سیاست اور پالیسیوں میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ بدلتی صورتحال کے تناظر میں جدید طریقوں پر مبنی حکمت عملی اختیار کرنا اہم ہے۔ دشمن کے روایتی حملوں کے ساتھ ہائیبرڈ حملوں کا بھی توڑ کرنا ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا پاک فضائیہ کے زیر اہتمام ایرو اسپیس ورکشاپ سے خطاب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شمالی اور جنوبی وزیرستان کا دورہ۔ بارڈر مینجمنٹ، سماجی اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں پر بریفنگ۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا تہیہ کیے ہوئے ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ کسی بھی صورت میں الیکشن پر اثر انداز ہونا کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ علی حیدر گیلانی کی میڈیا گفتگو اقبال جرم ہے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا جائے۔ وفاقی وزیر شاہد فواد حسین کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ الیکشن کمیشن کے باہر پریس کانفرنس۔ تحریک انصاف نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار مافیات کو چیلنج کیا۔ آج سامنے آنے والی ویڈیو انتہائی شرمناک ہے۔ ویڈیو ثابت کرتی ہے کہ مافیات کس طرح متحرک ہیں۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل۔ پاکستان چین سفارتی تعلقات کی 70ویں سالگرہ۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی کی اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ پاک چین تعلقات خطے میں امن و استحکام کے ضامن ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا اقوام متحدہ سے نہتے کشمیریوں کا قتل عام بند کرانے کا مطالبہ۔ کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ نوجوانوں کے بے ایمانہ قتل کی آزادانہ اور منصفانہ تحقیقات کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ کسان مودی حکومت کے سامنے ڈٹ گئے۔ سنگھو، ٹکری اور غازی پور میں کسانوں کے دھرنے۔ مودی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کسان گھر بار چھوڑ کر کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور۔ دلی کے ارد گرد شدید ٹریفک جام۔ متاثرہ علاقوں کے شہریوں کا ظالمانہ زرعی قوانین فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ PSL میں میچز کم کر کے ری شیڈیول کرنے کا فی الحال کوئی آپشن نہیں۔ اسٹیڈیم کے عملے اور براڈ کاسٹر سمیت 244 افراد کے ٹیسٹ۔ 3 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ کورونا پازیٹو افراد 10 دن تک قرنطینہ میں رہیں، PCB۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان۔ انڈیکس میں 370 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 45,964 پوائنٹس پر بند۔ انٹر بینک میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مزید مستحکم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت۔ میں ہوں آسماء اقبال۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔
और नाज़रीन, खबर में सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट की 37 नशस्तों के लिए कल पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने सवाल से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू होकर बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पंजाब में पहले ही 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। तफसील जानते हैं राना शहजादुस्सलाम से। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में होगी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस्लामाबाद से 2, सिंध से 11, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 12 सेनेटर्स मुंतखब होंगे। पंजाब से 11 सेनेटर्स पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त के लिए वफाकी वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और सैयद यूसुफ रजा गिलानी, जबकि खवातीन की नशिस्त पर फरजाना कौसर और फौजिया अरशद में मुकाबला है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 12 नशिस्तों पर 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 जनरल नशिस्तों पर वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज, फैसल सलीम रहमान, मोहसिन अजीज, जिशान खानजादा और लियाकत खान तारकई समेत 11 उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 5, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 5 और अक़लियत की वाहद नशिस्त पर 5 उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान से सेनेट की नशिस्तों पर 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5, BNP अवामी, ANP और जमहूरी वतन पार्टी से एक उम्मीदवार जनरल नशिस्तों के लिए मुकाबले में है। जमीयत उलमा इस्लाम, BNP मैंगल और पश्तूनख्वा मैप से भी एक उम्मीदवार मैदान में है। PTI के बलूचिस्तान असम्बली में पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद के फर्जंद सरदार खान रिंद और अब्दुल कादर भी आज़ाद हैसियत से सेनेट की जनरल नशिस्त के उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट की सीटों के लिए BAP की तरफ से सईद हाशमी और नवीद जान बलोच, जबकि JUI के एडवोकेट कामरान मुर्तजा और BNP के एडवोकेट साजिद तरीन में सख्त मुकाबला है। खवातीन की 2 नशिस्तों पर एक उम्मीदवार की तरफ से कागजात वापस लिए जाने के बाद BNP, BAP, JUI, ANP, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और एक आज़ाद उम्मीदवार मुकाबले में है। अक़लियत की एक नशिस्त पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी का एक उम्मीदवार मुकाबले में है। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन के लिए आईनी अहकामात और 25वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल से मुताल्लिक हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम की रिपोर्ट देखिए। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 59 सेनेट के इंतखाबात और इससे मुतल्लिक मामलात पर बात करता है। आम इंतखाबात में एक शख्स एक वोट का तस्वर पाया जाता है, मगर ईवान बाला के लिए यह असूल जरा मुख्तलिफ है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या वाहिद काबिल इंतकाल वोट होता है, जो जरा पेचीदा अमल माना जाता है। आइन के मुताबिक सेनेट 104 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें 14 जनरल, 4 खवातीन, 4 टेक्नोक्रेट्स या उलमा, जबकि गैर मुस्लिम रुकन हर सूबाई असम्बली मुंतखब करती है। वफाक या इस्लामाबाद से 2 जनरल, 1 खातून, 1 टेक्नोक्रेट की सीट्स हैं, जबकि 8 नशिस्तें साबिक फाटा रीजन की हैं। आइन के आर्टिकल के मुताबिक सेनेट में तय्युन नशिस्तों के लिए इंतखाब वाहिद काबिल इंतकाल वोट के जरिए मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के तहत किया गया है। आर्टिकल 59A, B और C के तहत सेनेट नाकाबिल तहलील है, जबकि इसके 50% अरकान 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। 3 मार्च को होने वाले सेनेट के इंतखाबात में तमाम सूबों से 50% अरकान का इंतखाब होगा, जिसमें पंजाब से 2 खवातीन और टेक्नोक्रेट्स के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 7 जनरल नशिस्तों के इंतखाब होना बाकी है। सिंध में तमाम 11 नशिस्तों पर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली 12 अरकान को मुंतखब करेगी, जिसमें एक गैर मुस्लिम रुकन भी शामिल है। वफाक में 1 जनरल और 1 खातून की नशिस्त के लिए वोटिंग कौमी असम्बली में होगी। आईनी तौर पर फाटा का कबायली इजला बन जाने के बाद सेनेट से ये नशिस्तें खत्म होने जा रही हैं और 2024 में सेनेट 96 अरकान का रह जाएगा, जबकि 25वीं आईनी तरमीम के बाद इस मरतबा फाटा अरकान के लिए इंतखाबात नहीं होंगे, जबकि 4 अरकान रिटायर हो जाएंगे। इस तरह इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद बनने वाले सेनेट के 308वें इजलास से आइंदा इंतखाबात तक सेनेट 100 अरकान पर मुश्तमिल रहेगा। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद के लिए निगरान कमेटी तश्कील दे दी है। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक निगरान कमेटी इलेक्शन कमीशन, FBR, नैब, स्टेट बैंक और नादरा के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चेयरमैन नादरा, चेयरमैन PTA और DG FIA से इंतखाबी बदनवानी के तदारुक के लिए तजावीज़ भी तलब किए हैं। निगरान कमेटी इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात के हवाले से जरूरी मालूमात और रिकॉर्ड फराहम करेगी। कमेटी किसी भी वाक़ई की सूरत में इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करने की पाबंद होगी। कमेटी हर किस्म की इंतखाबी बदनवानी का तदारुक करने के लिए काम करेगी।
इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कायम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का खुसूसी मॉनिटरिंग सेल सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए काम करेगा। सेनेट इंतखाबात के दौरान करप्ट प्रैक्टिसेस से मुतालिक 051-920-4402 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। अवाम सेनेट इंतखाबात से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज भी अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वालों में NA 110 से राजा रियाज अहमद, NA 105 से रजा नसरुल्लाह घुम्मन, NA 107 से खुर्रम शहजाद, NA 140 से सरदार तालिब हुसैन नकई, NA 119 से राहत अमानुल्लाह भट्टी, NA 135 से मलिक करामत अली खोखर, NA 55 से ताहिर सादिक, NA 158 से इब्राहिम खान, NA 85 से हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी, NA 70 से सैयद फैजुल हसन, NA 87 से चौधरी शौकत अली भट्टी, NA 175 से सैयद मुबीन अहमद, NA 152 से ज़हूर हुसैन कुरैशी, NA 12 से प्रिंस मोहम्मद नवाज, NA 9 से शेर अकबर खान, NA 259 से नवाबजादा शाहजैन बुगटी, NA 260 से खालिद हुसैन मक्सी, मखदूम समीउल हसन, रियाज सत्याना, लालचंद, शनीला रुथ, डॉक्टर रमेश कुमार, जय प्रकाश, जमशेद थमस, अब्दुल गफ्फार भट्टो और रुकने सूबाई असम्बली फिदा हुसैन चौधरी, फर्रुख अल्ताफ, मोहम्मद याकूब, ख्वाजा शिराज महमूद, अहमद हुसैन डहर और मखदूम जैन हुसैन कुरैशी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म से ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली सोबिया कमाल खान, साइसा बेगम और नुसरत वाहिद ने भी मुलाकात की है। अरकान कौमी असम्बली ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों को अक्सरियत हासिल है। उनका कहना था कि कल का दिन हुकूमत की फतह का दिन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई स्ट्रांग है, इमरान खान हमारा लीडर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसके विजन के मुताबिक हम चल रहे हैं। पीटीआई के सारे लोग इकट्ठे हैं और इत्तेहादी भी साथ हैं, तो मेरा ख्याल में कामयाबी है इंशाल्लाह। हुकूमत को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है और पूरी पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमातें इकट्ठी हैं और इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ रही हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल। हमारे पास हुकूमत के पास मेजॉरिटी है इस वक्त। आप देख रहे हैं कोई इत्तेहादी कहीं नहीं गया, पीटीआई का कोई मेंबर नहीं गया, इसलिए इंशाल्लाह ताला कल की शाम पीटीआई के लिए सेनेट में फतेह की नवीद आप सुनेंगे। सेनेट इलेक्शन आपके सामने शफाफ इलेक्शंस होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया। आई थिंक ही विल विन। एमकेएम बड़ी कोलिशन पार्टनर होने के नाते बिल्कुल वफाकी हुकूमत से कंधे मिलाकर खड़ी है और कहा है कि पीटीआई के साथ इंशाअल्लाह ताला कल न सिर्फ ये कि वफाक में बल्कि सिंध में भी पीटीआई, एमकेएम और जीडीए मिलकर इंतखाब लड़ रही है। अल्लाह के फजल करम से कल शेख हफीज साहब जीतेंगे और हमारी जमात भी मुतहदा है और तमाम जो इत्तेहादी हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला पीटीआई को वोट देंगे। और अब बात करेंगे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की, जिनका कहना है कि एक ताकतवर और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब हमारे सामने है और इसकी तकमील के लिए मुआशरे के तमाम तबकों को आगे बढ़ने के लिए मसावी मौके फराहम करना होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूक और फराइज में तवाज़ुन पैदा किए बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया के ज़ेर एहतमाम एरोस्पेस वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन से खिताब कर रहे थे। तफसील जानेंगे आगा मसूद खालिद से। एरोस्पेस एंड नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि एक नए मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान की जानिब आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें तमाम तबकों को मसावी हकूक की फराहमी हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि कौमें तब तरक्की करती हैं जब हर तबके के मसाइल का हल यकीनी बनाया जाए। दो चीजें हैं कौमों की तरक्की में, सेहत और तालीम। जो कौम आपका डायरेक्शन जा रहा है वो इसी तरह जा रहा है कि तालीम और सेहत का एहतमाम कर कर पूरी कौम को उठा लिया जाए। इसी में से वो हीरे निकलेंगे जो आजकल के अंदर जो आर्मामेंट्स की तरफ तवज्जो है, तो इंटेलेक्चुअल आर्मामेंट्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये अचानक आपके मुल्क को कहां से कहां पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के मामले में सिर्फ एक सोच होनी चाहिए और डेवलप करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह। एक वैसा पाकिस्तान जिसमें गरीब और अमीर सब बराबर हो कानून के अंदर भी, और फिर गुर्बत कम करने वाला पाकिस्तान। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने बेशबहा कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल की।
अहद हाजिर में हमें रवायती हथियारों के साथ हाइब्रिड हमलों का भी मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि हम कौम को मुत्तहिद और यकजा कर रहे हैं, जबकि भारत मुनाफरत और तासुब के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमें अपने ऊपर फख्र करना चाहिए, फख्र कई बातों का, इस बात का कि सैक्रिफाइसेस हमने कितनी दी हैं, इस बात का कि हमने यूनिक अंदाज से दहशतगर्दी की जंग जीती जिसमें कोई दुनिया के किसी मुल्क ने इतनी कुर्बानियां और इतनी कामयाबी हासिल नहीं की जितनी पाकिस्तान ने की। ये आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ आपने अंदर अपने आप पोलराइजेशन जो था उसको आपने न्यूट्रलाइज किया 30-35 साल के अंदर जाकर। वी आर राइट एट द टॉप ऑफ थिंग्स। इंटेलेक्चुअली हम कितने तैयार हैं, जिन चीजों के तजुर्बे से आप गुजर कर कामयाब हुए हैं, इंडिया उन कुओं के अंदर गिर रहा है, उस अपनी कौम को डिवाइड कर रहा है। हमने क्या सीखा इतने दिनों में? कौम को यूनाइट करना। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने वर्कशॉप के शुरका में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी उनके हमरा थे। पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि हम सिर्फ अमन के शराकतदार हैं, ताहम इसे कमजोरी न समझा जाए। पाक फिजाइया मादरे वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हुए हमा वक्त तैयार है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान जिलों का दौरा किया है। आर्मी चीफ को बॉर्डर मैनेजमेंट, इस्तेहकामी ऑपरेशन, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मुख्तलिफ मंसूबों समेत बॉर्डर टर्मिनल्स खोलने से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने पूरा दिन जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजर और शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में तैनात फौजी दस्तों के साथ गुजारा। अफसरों और जवानों से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने नए कबायली अजला के सिविल इंतजामिया के रेट और महफूज माहौल की फराहमी के लिए फौजी दस्तों के अज़्म और पेशावराना महारत की तारीफ की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है और इस हवाले से सरहदों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठा रहा है। इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों और FC की सदारे कार भी बढ़ाई जा रही है। मीर अली में कबायली अमायदीन से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत और कुर्बानियों की तारीफ की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों को जारी रखने के लिए दुश्मन की कोशिशों से चौकन्ना रहने की जरूरत है। दायमी अमन और तरक्की के सफर को मुत्तहद होकर ही जारी रखा जा सकता है। इससे कबल कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद ने आमद पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। और अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली के इजलास में 2 बिल मंजूर कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की सदारत में हुआ। निजी कार्रवाई के दिन तहरीक इंसाफ के रुकन अमजद अली खान की तरफ से पेश करदा इबादत बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिल 2021 और शेर अकबर खान की तरफ से पेश करदा इंसदाद बदउनवानी तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया गया। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान में ऐलान किया कि कल सेनेट के इंतखाबात में तमाम अरकान कौमी असम्बली अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए MNA कार्ड साथ लाएं। कार्ड की अदम मौजूदगी पर वोट कास्ट नहीं होगा। विफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अली हैदर गिलानी की जानिब से वीडियो की हकीकत तस्लीम करने के बाद यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इलेक्शन से नाअहल करार दिया जाना चाहिए। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अली हैदर गिलानी की मीडिया गुफ्तगू इस हवाले से इकबाल जुर्म है, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वीडियो के मामले का फौरी नोटिस लेते हुए हंगामी इकदाम करने चाहिए। इस वीडियो की आने के बाद जिसमें अली हैदर गिलानी जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे हैं और वो PTI के MNAs को वाज़े तौर के ऊपर वोट जाया करने के लिए कह रहे हैं और इस वीडियो को अब से कुछ देर पहले उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की अब जिम्मेदारी है कि वो रेफरेंस करे यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ और उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल डिक्लेयर किया जाए। और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की तारीख में पहली दफा माफियाज को चैलेंज किया। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि सेनेट इलेक्शन की शफाफियत के लिए माफियाज को नकेल डालना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वोटों की खरीदो फरोख्त की कोशिश की वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया जाए और इलेक्शन कमीशन वीडियो के मामले पर फौरी इंक्वायरी कराए। इस मुल्क ने किसी को चैलेंज करना शुरू किया, किसी से सवालात करने शुरू किए और ये क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है जिन्होंने सवाल किया। उससे पहले तो सियासी मफाहमत है, वसी तर मुल्की मफाद है,
इन अल्फाजों के पीछे बाजार गर्म करते रहे और चोरी चकारी करते रहे। गिलानी साहब के साहबजादे ने जो आज गुल खिलाया है, जो एक करप्शन की वीडियो सामने आई है, इससे ये बात साबित हो गई जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि साफ और शफाफ सेनेट का इलेक्शन ये माफिया नहीं होने देगी। अब इस वीडियो के आने के बाद हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तकाजा करते हैं इस पे फौरी तौर पर एक्शन लें। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन रवा साल का बड़ा सियासी मार्का है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन के हवाले से अपने मौकफ से पीछे हट चुकी हैं। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पैसे के जोर पर आने वाले सेनेटर्स के बायस ऐवान का तकद्दुस पामाल होता है। उनका मजीद क्या कहना था, रिजवान आरिफ बताएंगे। वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान 2013 से मुसलसल सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने का मुतालबा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिसाके जमहूरियत में भी सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की तजवीज शामिल थी। 2015 में जब नून लीग ये कानून लेके आई कि आप वोट ओपन करें, तो इमरान खान अपोजिशन में होते हुए वाहिद आवाज से जो कह रहे थे कि ये लॉ बिल्कुल सही है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब जब तहरीक इंसाफ ये कानून लेकर आई तो नून लीग की जो नाबालिग की आदत है वो पीपल्स पार्टी की गोद में जाके बैठ गई और पीपल्स पार्टी ने उनको तसल्ली दी कि नहीं, हम वोटें खरीद लेंगे, लिहाजा आप इस कानून की मुखालफत करें। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है कि इलेक्शन कमीशन शफाफियत के हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। टेक्नोलॉजी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को शफाफियत के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा कहा है कि वो इत्तफाक तो करते हैं इस बात से कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोआन अमल दरामद भी करना चाहते हैं, लेकिन वक्त नहीं है। अब जरूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोआन अमल किया जाए। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम इदारों का एहतराम करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद इदारों के लिए जरूरी है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा से 2 उम्मीदवार सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। JUIF की नईमा किश्वर और मोहम्मद तारुक खटक ने दस्तबरदारी का ऐलान किया, जिसके बाद सूबे में 23 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जनरल नशिस्त पर बतौर सेनेट उम्मीदवार सतारा अयाज दस्तबरदार हो गई हैं। जनरल नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार सरदार खान रिंद भी दस्तबरदार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए PTI के उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त निपटाते हुए इस बारे में ये हिदायत की कि इलेक्शन के बाद मुतालिका फौरन से रुजू कर सकता है। शाहिद रिंद ने सैफुल्लाह अबड़ो की अहलियत को चैलेंज करते हुए दरखास्त में मौके पर अख्तियार किया था कि सैफुल्लाह अबड़ो टेक्नोक्रेट की तारीफ पर पूरा नहीं उतरते। नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर जश्न की इफ्तिताही तकरीब बैक वक्त इस्लामाबाद और बीजिंग में मुनक्किद हुई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी ने तकरीब से खिताब किया है। तफसील जानेंगे अमजद अली से। हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी पाक चीन दोस्ती के 70 साल रवां बरस मुकम्मल हो रहे हैं। दोनों मुल्कों में लाजवाल दोस्ती के 70 साल जश्न के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब साल भर जारी रहेंगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के वजीर खारजा वांग जी ने जश्न की इफ्तिताही तकरीब का आगाज किया। वांग जी तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में वसी बुनियाद तवील मुद्दती पाक चीन ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील हो चुके हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एतमाद, हिमायत और बाहमी मफादात के असूलों पर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ने नशोनुमा पाई। हमारे ताल्लुकात में पहले से ज्यादा गहराई है, पहले से ज्यादा एतमाद है और पहले से बढ़कर हम मिलकर आगे बढ़ने का अज़्म कर चुके हैं। सीटेक पे तो मुकम्मल इत्तेफाक है और हमारे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियल रिलोकेशन हो, पॉवर्टी एलिविएशन हो
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी की प्रमोशन हो, इंशाल्लाह आप सीपेक में मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स देखेंगे। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने कोरोना वबा के कठिन वक्त में चीन की तरफ से वैक्सीन हासिल की। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि दोनों मुल्क आलमी और इलाकाई फोरम्स पर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अभी हमारे पास फौरी खबर आ रही है इलेक्शन कमीशन से। आपको बताएं कि अली गिलानी से मुताल्लिक वीडियो पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है और कहा यह गया है कि इस वीडियो की मेरिट पर तहकीकात होंगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। अली गिलानी से मुताल्लिक वीडियो पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है और वीडियो की मेरिट पर तहकीकात होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। इससे मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि अली गिलानी से मुताल्लिक वीडियो पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। वीडियो की मेरिट पर तहकीकात होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि अली गिलानी से मुताल्लिक वीडियो पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हीं के बेटे अली गिलानी की एक वीडियो लीक हुई है। सेनेट इलेक्शन में किस तरह से वोट बेचा जाता है, किस तरह से वोट खरीदा जाता है, ये वीडियो उसका मुंह बोलता सबूत है। आज पीटीआई रहनुमाओं ने इसके बाद ये मुतालबा किया है कि सेनेट इलेक्शन को इस पर नोटिस लेना चाहिए और यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट के इंतखाब से उनका नाम जो है हटाना चाहिए। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कार्रवाई करता है। बहरहाल ये बड़ी खबर जिससे हम आपको आगाह कर रहे थे। अली आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर की। जी हाँ, मकबूजा वादी का रुख करते हुए आपको बताएं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं, इंसानी हुकूक के आलम बरदारों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक के मुजरिमाना रिकॉर्ड पर भारत के खिलाफ तादेबी कार्रवाई करे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स जम्मू कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद एहसन ओंटो ने श्रीनगर में एक जाली मुकाबले में शहीद होने वाले 3 कश्मीरी नौजवानों के अहले खाना से मुलाकात की और इसके बाद आलमी अदालत इंसाफ, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल और इंसानी हुकूक की दिगर तंजीमों पर जोर दिया कि वो जाली मुकाबले में नौजवानों के बेईमाना कत्ल की आसादाना और मुनसिफाना तहकीकात के लिए भारत पर दबाव डालें। भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता बरस 30 दिसंबर को अथर मुश्ताक वानी, जुबैर अहमद लॉन और इजाज अहमद को बिला जवाज कत्ल किया था। जम्मू कश्मीर यूथ सोशल फोरम जिला शुपैया के सदर अदनान सैफी ने शुपैया के इलाके बटापुरा में शहीद अशफाक मजीद और शहीद जुनैद के अहले खाना से मुलाकात के मौके पर कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा इलाके में निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम का सिलसिला बंद कराने के लिए तनाज़ा कश्मीर को हल करना चाहिए। जम्मू कश्मीर इम्प्लाई मूवमेंट ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि कश्मीरी अवाम अपने हक खुद इरादत के हुसूल के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दे रहे हैं और कश्मीरियों के इसी हक को अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम कर रखा है। नाज़रीन, कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से जारी की गई एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी की ज़ेर क़यादत से स्थायी भारतीय हुकूमत कश्मीरी अवाम को अपने वतन की अहम पैदावारों खासकर ज़ाफ़रान से महरूम करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इदारा कायम करने के नाम पर ज़रई अराज़ी पर कब्जा करना चाहती है। इस हवाले से एक ताज़ा इक़दाम में भारतीय हुकूमत ने 13 साल पुराने बैनुल-अक़वामी तिजारती मरकज़ को बंद कर दिया और इसका मकसद दुनिया भर से खरीदारों को ज़ाफ़रान की पैदावार के लिए मशहूर इलाके पामपुर आने की जानिब राग़िब करना था। रिपोर्ट में कहा गया कि ज़ाफ़रान की बरामद को फरोग देने के लिए हासिल की गई 300 कनाल अराजी को कस्बे में वाक़े भारतीय आईटी मरकज़ को मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ाफ़रान के काश्तकारों और मकामी रिहायशियों ने इसको कश्मीर की मईशत को तबाह करने की साजिश करार दिया ताकि कश्मीरियों का भारत पर इन्हिसार बढ़ाकर तहरीक आज़ादी को दबाया जा सके। रिपोर्ट में पामपुर में ज़ाफ़रान के काश्तकार अब्दुल खालिक का हवाला दिया गया, जिन्होंने मोदी हुकूमत के इस इक़दाम को बदकिस्मती करार दिया है। भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर, बारामूला, बांडीपुरा, शुपैया, पुलवामा और इस्लामाबाद अजला के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी, जिससे लोगों में खौफ व हरास पैदा हो गया। पुलिस ने जिला पुलवामा के इलाके तराल में एक नौजवान को गिरफ्तार किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जिला इस्लामाबाद में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 लाख भारतीय फौजी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि कश्मीर एक मसला है जिसको हल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो कुछ छीन लिया उसे सूद के साथ वापस किया जाए।
उत्तर भारत में जालिमाना ज़रूरी कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक पूरी शिद्दत के साथ जारी है। और नई दिल्ली के सिंघू, टकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में काश्तकार अब भी धरना दिए बैठे हैं। 1915 में अंग्रेजों के हाथों जान देने वाले किसानों की याद में टकरी बॉर्डर पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन का कहना था कि अपनी धरती के लिए जान देने वालों को याद करके तहरीक का जज्बा बढ़ा रहे हैं। 26 नवंबर से मुसलसल जारी धरनों की वजह से दिल्ली के इर्द गिर्द ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर हो रही है। अहले इलाका का कहना है कि मोदी की हठधर्मी की वजह से किसान घर बार छोड़कर यहां बैठने पर मजबूर हैं। बीजेपी हुकूमत को काले कानून फौरी तौर पर वापस लेने चाहिए। खुशामदीद नाज़रीन, यहाँ पर आपको PSL के हवाले से अपडेट करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के 12वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बरनी का कहना है कि PSL मैचेस कम करके रीशेड्यूल करने का फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए समीउल हसन बरनी ने बताया कि स्टेडियम के अमले और ब्रॉडकास्टर्स समेत 244 PCR टेस्ट लिए गए, जिनमें 2 गैर मुल्की खिलाड़ियों और 1 स्टाफ मेंबर समेत 3 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव अफराद 10 दिन तक क्वारंटीन में रहें और 3 दिन बाद इनको दोबारा टेस्टिंग की जाएगी। PSL 6 में बड़े स्कोर बनने के साथ साथ शायकीन का जोश भी बढ़ गया है और वो भरपूर अंदाज में अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। मजीद तफसील जानते हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन की रिपोर्ट में। PSL 6 में पॉइंट्स टेबल पर टीमों की जस्तजू के साथ साथ शायकीन क्रिकेट की धड़कनें भी तेज हो गई हैं और भरपूर अंदाज में अपनी अपनी टीमों की सपोर्ट का सिलसिला जारी है। कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करने के लिए मैच देखने आ गया है तो कोयटा के दूर दराज इलाकों से भी आने वालों की कमी नहीं, जबकि कोयटा के सपोर्टर्स पर उम्मीद है कि टीम बाउंस बैक करेगी। हम अभी थाना बुल्ला खान कोहिस्तान से आए हुए और फुल सपोर्ट हम यहाँ कर रहे हैं इस्लामाबाद को। सारे हमारी बस लेके हम वहाँ से आए। ये हम है और ये हमारी पूरी फैमिली और हम देखने आए इस्लामाबाद का मैच। बच्चे, बड़े, बूढ़े और खवातीन समेत सभी क्रिकेट के जुनून में मुब्तला हैं और PSL और क्रिकेट को सराह रहे हैं। हमारी फुल सपोर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड को। बहुत अच्छा PSL जा रहा है और आने वाला वक्त हमारे मुल्क के लिए इतना अच्छा होगा कि अभी कुछ प्लेयर्स आए, इंशाल्लाह पूरे सब प्लेयर्स आएंगे, फॉरनर सारे प्लेयर्स आएंगे। कराची में 7 मार्च तक PSL 6 का मेला सजा रहेगा, जिसके लिए तमाशाइयों की ख्वाहिश है कि वो कम से कम एक दफा स्टेडियम में अपनी अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट कर सकें। PSL का जुनून मुकम्मल उरूज पर है। अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने और अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए सभी नेशनल स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। अभी के लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। शफीक आगाह कर रहे थे PSL के हवाले से। आगे जो मजीद खेलों की खबरें हैं उनके लिए दोबारा हम शफीक की जानिब चलेंगे। अभी हमें रुख करना है और बात करनी है कोविड-19 के हवाले से। आपको अपडेट करें कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 1163 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 42 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद बढ़कर 12,938 हो गई है। मुतासरा अफराद में से 5,47,406 सेहतियाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 11 करोड़ 51 लाख से तजावुज कर गई है। मुहलिक वायरस से अब तक 25,53,000 से ज्यादा हालात हैं, जबकि 9 करोड़ 8 लाख 25 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। मुहलिक वायरस से निपटने के लिए अमरीका, चीन, बरतानिया और यूरोप समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका में हलाकतों की मजमूई तादाद 5,27,300, जबकि भारत में 1,57,275 से ज्यादा हो चुकी है। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि रवां साल के आखिर तक कोरोना के मुकम्मल खात्मे का इम्कान नहीं है। WHO के डायरेक्टर ने कहा है कि मुसलसल 6 हफ्तों के दौरान कोरोना केसेस की कमी के बाद गुज़श्ता हफ्ते केसेस में इजाफा देखने में आया है। कोरोना केसेस में इजाफा मायूस कुन है और हैरान कुन भी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, लेकिन इस पर इंहिसार करना गलती होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका, यूरोप और जनूबी मशरकी एशिया के ममालिक में कोरोना केसेस बढ़ते हैं और हुकूमतें और अवाम कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखें।
नाज़रीन, कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान खत्म हुआ और इंडेक्स में 370 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम हुई है। इसकी तफसील ज़ीशान अहमद खान से। बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से मुल्क की मईशत पर एतमाद के बाइस पाकिस्तानी रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है और कसीर तादाद में बैरून ममालिक से डॉलर्स और मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी की मुल्क में आमद और तरसीलात ज़र भेजने का सिलसिला भी जारी है। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुख्तलिफ शोबों में भी सरमायाकार सरमायाकारी कर रहे हैं। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि हमारे पास बहुत बड़ा वॉल्यूम चल रहा है। 40 मिलियन का रोजाना वॉल्यूम हो जाना, ये मैं समझता हूँ मिनिमम वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम है और ये सारे वॉल्यूम जो है वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में न सिर्फ लोकल बल्कि फॉरेन इंटरेस्ट दोनों अपनी जगह पर मौजूद है। और पाकिस्तान की मार्केट में इंटरेस्ट लेने का मतलब ये है कि न सिर्फ आप पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रस्ट कॉन्फिडेंस लेवल कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की मईशत को जो है वो आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। दूसरी जानिब आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत खरीद 157 रुपए 5 पैसे और कीमत खरीद 158 रुपए 25 पैसे रही, जबकि ओपन मार्केट में कीमत खरीद 157.8 और कीमत फरोख्त 158.4 पैसे रही। जबकि स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान खत्म हुआ और 100 इंडेक्स 45,964 पर बंद हुआ। बाजार हिस्सेस में 1,47,764 शेयर का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 22 अरब 96 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जबकि कारोबारी हजम 39 करोड़ 91 लाख रुपए से ज्यादा रहा। 229 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 125 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 19 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और अब बात करेंगे मुशीर तिजारत और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद की, जिनका कहना है कि रवां माली साल के जुलाई फरवरी के दौरान बरामदात में गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 2.085 बिलियन अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ज्यादातर इजाफा खाम माल और दूसरे सामान की दरामद में हुआ है। इससे पता चलता है कि मुल्क में सनती सरगर्मियां बढ़ रही हैं। मुशीर तिजारत ने कहा कि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए गंदम और चीनी की दरामद से भी इस साल इम्पोर्ट बिल में इजाफा हुआ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से अमरीका के कायम मकाम सफीर एंजेला पी एगलर ने मुलाकात की है और मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान में पायदार अमन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद ने उम्मीद जाहिर की है कि नई अमरीकी इंतजामिया से पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पायदार अमन पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मकसद है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए बेपनाह जानी और माली कुर्बानियां दी। कायम मकाम अमरीकी सफीर ने कहा कि नई अमरीकी इंतजामिया से पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। और नाज़रीन, कतर के सफीर शेख सऊद अब्दुल रहमान अल सानी ने इस्लामाबाद में दिफाई पैदावार की वजीर जुबैदा जलाल से मुलाकात की है। इस मौके पर विफाकी वजीर का कहना था कि हमें फौजी मशकों, अहलकारों की तरबियत और दिफा के मुश्तरका मनसूबों के लिए दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत है। हमारे फौजी इदारे कतर की मुसल्लह अफवाज की तरबियत के लिए दस्तयाब हैं। कतर के सफीर ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन के लिए अपनी हुकूमत के अज़्म का यकीन दिलाया है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कौम को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़ियादत पर गैर मुतसलसल यकीन है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि तनकीद करने वाले अनासर तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि तरक्याती मनसूबों का रुख दूर दराज और पसमानदा इलाकों की जानिब मोड़ दिया गया है। उनका कहना था कि वो मुंतखब नुमाइंदों से राबिते में है और उनकी तजावीज़ की रोशनी में हल्कों में तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। अरकान असम्बली ने अपने हल्कों के मसाइल के हल के लिए ज़ाती दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। और अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ यूसुफ रज़ा गिलानी का टैलेंट है, इसके लिए उन्हें सेनेट के लिए नामजद किया गया। गिलानी को जरदारी की करप्शन बचाने और कौम की लूटी गई दौलत की बाजियाबी रोकने का सिला दिया गया है। मुराद सईद का कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी का साहबजादा जो करते पकड़ा गया वो उनका आबाई पेशा है। गिलानी की औलाद बड़े बड़े स्कैंडल्स में मुलव्विस रही है। इंतखाबात में शफाफियत के लिए तारीखी जिद्दोजहद इमरान खान ने की। कल करप्शन और बददयानती की सियासत दफन करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासिन ज़ईद से स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल क़ुद्दूस वज़िंजो ने गवर्नर हाउस कोयटा में मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान ने सूबे की तमाम जामियात से गुज़श्ता 10 साल के दौरान इल्हाक शुदा तालीमी इदारों की तफसीलात तलब किए हैं।
पेशावर में वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी के सेनेट इजलास की सदारत करते हुए गवर्नर ने कहा कि तफसीलात तलब करने का मकसद इदारों की कारकर्दगी और शफाफियत के अमल को देखना है। इजलास में वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी के सालाना बजट की भी मंजूरी दी गई है। मुआविन खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि इतलात तक रसाई का एक्ट नए पाकिस्तान की तामीर का लाजमी जुज़्व है। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को हुकूमती उमूर पर बात करने का पूरा हक हासिल है। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के फोरम पर हर शहरी के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और खबर आप तक पहुंचाएं कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के लिए गंदम पर 6 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है और आबादी के हिसाब से गंदम का कोटा बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गिलगित में असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान ने कहा कि प्रोविंशियल सोशल रजिस्ट्री का मकसद सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुस्तहिक अफराद को उनका हक देना है। असम्बली ने कोपहमा मोहम्मद अली सतपारा को खराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद की मुत्तफ़िका मंजूरी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने F8 इस्लामाबाद में वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने का हुक्म देते हुए इस्लामाबाद बार की दरखास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फुटबॉल के मैदान पर बने गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि किसी भी गैर कानूनी काम को कैसे जवाब फराहम किया जा सकता है। अदालत ने मुतबादिल जगह मिलने तक वकला के चैम्बर्स गिराने में मोहलत देने से मुतालिक इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। और नैब कराची ने फजाइया हाउसिंग स्कीम कराची समेत मुख्तलिफ मुतासरीन में 13.958 अरब रुपए वापस किए हैं। ये बात चेयरमैन नैब रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब कराची की कारकर्दगी से मुताल्लिक जायजा इजलास में बताई गई। डायरेक्टर जनरल नैब कराची ने चेयरमैन नैब को बताया कि नैब कराची ने अवाम की शिकायत पर मासूम लोगों से बड़े पैमाने पर लूटमार करने पर फजाइया हाउसिंग स्कीम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास चेयरमैन कमेटी फैजुल्लाह की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में SCCP के हुकाम ने कारपोरेट कंपनीज रिस्ट्रक्चरिंग तरमीमी बिल के हवाले से ब्रीफिंग दी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस बिल के जरिए कारपोरेट कंपनीज के किरदार को बढ़ाया जा सकता है ताकि सरमायाकारों को सहूलत फराहम की जा सके। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि इस बिल के जरिए कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग और रिकवरी की स्कीम शुरू की जाएगी। और ऐवान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास सैयद नवीद कमर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में पावर डिवीजन के साल 2012 के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। इजलास को सुई नॉर्दर्न के हुक्काम ने बताया कि गैस की चोरी को रोकने के लिए इक़दाम किए गए हैं और गैस की सप्लाई के लिए पाइपलाइन के निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है। सूबा बलूचिस्तान मुनफरिद सकाफत, रवायात और तहजीब व तमद्दन यहाँ बसने वाले लोगों की पहचान है और आज बलूचिस्तान में बलोच कल्चर डे भरपूर अंदाज में मनाया गया। इसी पे आपको दिखाएंगे मीर सलाम जोगी की रिपोर्ट। बलूचिस्तान भर में बलोच कल्चर डे निहायत जोश व खरोश से मनाया गया। जामिया बलूचिस्तान क्वेटा में बलोच कल्चर डे के हवाले से मरकजी तकरीब में बलोच सकाफत, तहजीब व तमद्दुन को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। इससे न सिर्फ ये कि हमें बलोच सकाफत से, बलोचों की तहजीब से, बलोची अख्तार से आगाही हासिल होती है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ करने से जब हम तमाम कौमों को दावत देते हैं तो आपस में एक दूसरे को मोहब्बत का दर्ज देते हैं, एक दूसरे को अमन का दर्ज देते हैं। बलोच कल्चर डे के हवाले से इलाकाई जबानों के कौमी चैनल PTV बोलान पर भी खुसूसी प्रोग्राम और मुकालमे नशर किए गए, जिसमें बलोच सकाफत, रिवायात और म्यूजिक पर माहिरीन ने खुसूसी तबसरे पेश किए। हम बलोच कल्चर डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि मैं वैसे पख्तून हूँ, लेकिन हम सेलिब्रेट बलोच कल्चर डे करते हैं क्योंकि हम बलोचिस्तान से है, क्योंकि ये जो बलोचिस्तान है वो मुख्तलिफ जो सकाफतों का मतलब मजमूआ है। अमन के लिए और भाईचारे के लिए और खुशहाली के लिए जो है ये हम आज ये सफेद पगड़ी बांध के निकले हैं मैदान पे, इसलिए कि ये अमन का पहचान है। बलोच कल्चर डे के हवाले से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला गवादर, तुरबत, डेरा बुगटी, कोलू, नसीराबाद, सिबी, लोरलाई, खुजदार, चागी और दीगर इलाकों में रंगारंग सकाफती प्रोग्राम और रैलियां मुनक़िद हुई, जिसमें कबायली अमायदीन, सिविल सोसाइटी के अलावा खवातीन और बच्चों ने सकाफती लिबास जेबतन किए और अपनी सकाफत से वालियाना मोहब्बत का इजहार किया। बलूचिस्तान पाकिस्तान से मोहब्बत, सकाफतों की आमीन और अकदार की सरजमीन है। मीर सलाम जोगी, PTV न्यूज़, क्वेटा। अब लाहौर चलते हैं, जहां महकमा इत्तलात व सकाफत पंजाब के ज़ेरे तमाम अलहमरा आर्ट काउंसिल में सूबाई हम आहंगी के फरोग के लिए बलोच कल्चर डे का इनेकाद किया गया।
तकरीब का अहवाल जानते हैं शमाइला शब्बीर की इस रिपोर्ट में। बलोच कल्चर डे मनाने का मकसद मुल्क भर में अमन सलामती, प्यार मोहब्बत, भाईचारे और कौमी यकजहती की फिजा को परवान चढ़ाना है। जिंदा दिलाने लाहौर जो हैं अपने बलूचिस्तान के भाइयों को ये पैगाम दे रहे हैं कि लाहौर में उनके लिए कितनी ज़्यादा मोहब्बत है, कितना ज़्यादा एहतराम है और बलोच कल्चर जो है उसकी पंजाब में कितनी ज़्यादा अहमियत है। बलोच कल्चर डे मुबारक हो। उसके बाद हम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिनकी वजह से आज पंजाब के अंदर ख़ुसूसन लाहौर के अंदर बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है। बलोच कल्चर डे के मौके पर बलोची वसीब, बलोची तर्ज जिंदगी, इलाकाई रक्स और लोकगीत पेश किए गए। इस रंगारंग तकरीब में जिंदा दिलाने लाहौर को बलोची तहजीब और सकाफत देखने और इलाकाई फनकारों को भी अपने फन का मुजाहरा करने का मौका मिला। हम इधर सीएम साहब के और लाहौर के सब दोस्तों के शुक्रगुजार हैं कि बलोच कल्चर डे प्रोग्राम पे आए हुए हैं और सब दोस्तों ने हमारी हौसला अफजाई भी की। Yes, very interesting, very nice. I want to go to Balochistan. I'd like to visit one day. So I just came to have a look at the craft. सूबाई वजीर सकाफत ख्याल अहमद कास्तरों ने तकरीब में शिरकत की और मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए कहा कि मुल्क भर के तमाम इलाकाई और सकाफती रंग हमारी पहचान है। इस तरह की तकारीब से सकाफती हमआहंगी के फरोग के साथ साथ नौजवान नस्ल को अपनी आला कौमी और इलाकाई रवायात से रूशनास कराने में मदद मिलती है। शमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, उर्दू अदब के मारूफ शायर नासिर काज़मी को हमसे बिछड़े 49 बरस बीत गए हैं, मगर अपनी खूबसूरत शायरी के बाइस वो आज भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। नासिर काज़मी की बरसी के मौके पर उनकी अदमी खिदमात पर रोशनी डाल रहे हैं लाहौर से नवीद हयात। गजल को एहसास जिंदगी बनाकर दिन रात इसमें मगन रहने वाले शायर नासिर काज़मी दुनिया अदब में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। 8 दिसंबर 1925 को भारतीय शहर अम्बाला में पैदा होने वाले नासिर काज़मी ने तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान को अपना मस्कन बनाया। 1954 में उनका पहला शेरी मजमुआ बरगे नए शाया हुआ तो उसे बेहद पजीराई मिली और वो देखते ही देखते सफ़े अव्वल के शायरों में शुमार किए जाने लगे। नासिर काज़मी ने जिंदगी के नशे व फराज और तल्ख हकीकतों को अपने अशार में सुमोया। उनकी शायरी इंसानी जज्बात की बेहतरीन तर्जुमान है। गजल में रवायत को भी परवान चढ़ाया और उसे जदीद रंग का पैरहन भी दिया। उन्होंने ऐसा आम फहमे अंदाज़े फिक्र और उसलूब अपनाया कि अवामी शायर कहलाए। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। हिजरत का गम भी नासिर काज़मी की शायरी में नुमाया है। उनके दीगर शेरी मजमुओं में पहली बारिश, दीवान और सुर की छाया शामिल हैं। 2 मार्च 1972 को ये अवामी शायर इस दुनिया फानी से कूच कर गया, ताहम उनका कलाम उनके करोड़ों मदाहों में आज भी उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सिविल सर्विस में मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 5 दियानतदार सरकारी मुलाजिमीन को इस्लामाबाद में अवार्ड दिए गए। ASP आमना बेग इस्लामाबाद, दरियान खातून प्रिंसिपल सिंध, मुख्तार पारिस DG सेक्रेटेरिएट, तारिक जावेद मेंगल डिप्टी कमिश्नर कला अब्दुल्ला बलूचिस्तान और अजहर अली महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा को अवार्ड दिए गए। इंटीग्रिटी आइकॉन अवार्ड में मुल्क भर से हजारों अफराद ने अपनी पसंदीदा शख्सियात को वोट दिया। अवार्ड का मकसद सरकारी मुलाजमीन में दयानतदारी और पेशा वाराना वक़ार को बरकरार रखना है।
खेलों की खबरों में एक बार फिर से खुशामदीद। कोयटा ग्लैडिएटर्स के जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर डेल स्टेन ने कहा है कि पीएसएल में क्रिकेट को अहमियत दी जाती है, आईपीएल में पैसे की बात ज्यादा और क्रिकेट को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि अच्छी क्रिकेट, अच्छी टीमों और टूर्नामेंट्स पर तवज्जो देना चाहता हूं। डेल स्टेन का कहना है कि किसी लीग में पीएसएल के मयार की फास्ट बॉलिंग देखने को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मैं बेहतर से बेहतर कारकर्दगी पेश करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतूहात में अहम किरदार अदा करना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहली क़ायद-ए-आज़म इंटर डिविजनल टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई है। चैंपियनशिप में पंजाब के 9 डिवीजन्स के 324 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इवेंट के इफ्तिताही रोज खवातीन के पावर लिफ्टिंग के मुख्तलिफ कैटेगरीज में लाहौर और सरगोदा के खिलाड़ी फाते रहे। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के ताउन से होने वाली पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इंटर तहसील गेम्स खत्म हो गई हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मदुल्लाह खान आफरीदी अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल समेत 5 खेलों में 200 टीमें हिस्सा ले रही है। खैबर के तीनों तहसीलों में होने वाली गेम्स एख्तिताम पजीर हो गई। एख्तितामी तकरीब में फ्रंटियर कोर की जानिब से जमरोड, मलागोरी, लंडी-कोतल और बाड़ा में कामयाब होने वाली टीमों के खिलाड़ियों में मेडल और इनामात तकसीम किए गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अगले मरहले में जिला खैबर की 200 से ज्यादा टीमों के 2500 खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। तारीख में पहली बार फ्रंटियर कोर की जानिब से स्पोर्ट्स मेले के इनेकाद को खिलाड़ियों ने खूब सराहा है। उम्मीद करते हैं आगे भी इस तरह के टूर्नामेंट होते रहेंगे। अल्लाह नए टैलेंट सामने आएंगी। हमारे बंदे बहुत अच्छे खेले हैं। फुटबॉल में हिस्सा लिया था और इवेंट काफी अच्छा इवेंट था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल का बुनियादी मकसद इलाकाई सतह पर मौजूद खिलाड़ियों में टैलेंट को उजागर करने के साथ साथ इन्हें मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। मोहम्मदुल्लाह खान अफरीदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, खैबर। सवात में अंडर 21 गेम्स के ट्रायल्स मुकम्मल हो गए हैं। ट्रायल्स में मर्द खिलाड़ियों समेत खवातीन खिलाड़ियों ने भी कसीर तादाद में हिस्सा लिया है। मर्दों में बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, जूडो, टेबल टेनिस, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, हॉकी और जिम्नास्टिक के ट्रायल्स हुए, जबकि खवातीन की कैटेगरी में वॉलीबॉल, नेटबॉल, बैडमिंटन, टग ऑफ वॉर, एथलेटिक्स, क्रिकेट और टेबल टेनिस ट्रायल्स मुकम्मल हुए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामिर में सवात दास मेले का आगाज हो गया है। दारेल में होने वाले इवेंट 10 रोज तक जारी रहेगा। फेस्टिवल के इफ्तिताही रोज टीमों और खिलाड़ियों की तरफ से मार्च पास्ट का मुजाहरा भी किया गया। पहले रोज रिवायती खेल फ्री स्टाइल पोलो के मुकाबले हुए। इवेंट में खेलों के मुकाबलों समेत सकाफती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। नाज़रीन, साइबेरिया की यकबस्ता हवाओं का तो सबने ही सुन रखा है, लेकिन इन सर्द हवाओं में मैराथन दौड़ का भी इनकाद किया गया। रूस में दुनिया की गहरी तरीन जमी हुई झील पर कोरोना वायरस के बावजूद 6 ममालिक से 83 मर्द और खवातीन एथलीट्स ने शिरकत की। रनर्स ने मनफी दर्जा हरारत में भरपूर तवानाइयों और हिम्मत का मुजाहरा किया और फुल और हाफ मैराथन दौड़ लगाई। 42 किलोमीटर का मरकजी मुकाबला रूसी कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान एलेक्सिस समर्टन ने अपने नाम किया। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। जी शफीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरें जानना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का न सिर्फ पाकिस्तानी, भारतीय और कश्मीरी अवाम ने खैर मकदम किया है, बल्कि इस मुआहदे को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि 25 फरवरी जुमेरात को पाक भारत फौजी हुक्काम का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ, जिसमें यह समझौता तय पाया कि दोनों तरफ से जंगबंदी मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ रहने वाले कश्मीरियों ने इस मुआहदे पर
خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے گولہ باری سے متاثرہ لوگوں کو راحت ملے گی۔ ہمیں یہ بات سن کے بہت سی خوشی ہوئی جو کہ بارڈروں کی جو یہ فائرنگ جو سیز فائر یہ جو بند ہوگی، میٹنگ میں یہ ایک فیصلہ ہر طرف دونوں طرف کے کمانڈر صاحبوں نے کیا کہ یہ آئندہ نہیں ہوگا، تو اس میں ہمیں بہت ہی حد زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ جب یہ فائرنگ ہوتی تھی تو جو بارڈر پر بسنے والے لوگ تھے ان کو طرح طرح کے مشکلات اور طرح طرح کی پریشانیاں گھر بار چھوڑنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ جو فائر چل رہا تھا ہمارے بچے جو تھے وہ اسکول جا نہیں پا رہے تھے، ڈھوکوں میں ہم جاتے تھے اور مال مویشی لے کر اور گولہ باری ہوتی تھی، اس میں ہمارا نقصان بہت ہوتا تھا۔ اس لیے میں شکریہ کرتا ہوں کہ جو پاکستان سے یا ہندوستان والوں سے جو انہوں نے گولہ باری بند کرنے کی بات کی۔ یہاں پہ جو پہلے گولہ باری ہوتی تھی اس سے ہمارا کافی نقصان ہو جاتا تھا، ہمارے بچے اسکول نہیں جا پا رہے تھے، ہمارے جو مویشی تھے ان کو ہم چرانے کے لیے نہیں لے جا سکتے تھے۔ کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی گولہ باری سے لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ بھارتی فوج جان بوجھ کر رہائشی علاقوں اور بستیوں کو نشانہ بنا کر کشمیریوں کو آزادی کے مطالبے کی سزا دے رہی ہے۔ بھارت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آزاد جموں و کشمیر کے علاقوں پر اندھا دھند گولہ باری کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف ہزاروں مکانات تباہ ہوئے بلکہ کافی جانی اور مالی نقصان بھی ہو چکا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں لوگوں کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر مسلسل کشیدگی کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن بن چکی ہے اور بھارتی فوج نے ان کی زمینوں پر قبضہ جما کر انہیں گھروں سے بے دخل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ قابض بھارتی فورسز نے جنگ بندی لائن کے قریب والی بستیوں اور جنگلوں میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں، جن کی وجہ سے اب تک کئی لوگ شہید، معذور اور زخمی ہو چکے ہیں۔ بارڈر کی زندگی بہت بڑی خطرے میں تھی، ہم لوگوں کے کافی نقصان ہوئے، کئی لوگوں کی ٹانگیں اڑی ہیں، کئیوں کی لاٹھی فائرنگ سے ہوئے، کئی لوگ مر گئے، پکھرنی کے 3-4 کیس جو ہیں وہ فائرنگ کی وجہ سے بیچارے جان دے بیٹھے۔ تو آج تو لوگوں میں بڑی خوشی کی لہر ہے جو یہ آج نیوز سنایا۔ 2 دن سے کوئی گولی گولا کسی چیز کی بارڈر پر کوئی فائرنگ نہیں ہے، ہر آدمی کو کھل کر اپنے کھیتی باڑی میں جا رہا ہے، مال مویشی کا کام کر رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، مندر میں جا رہا ہے، گردوارہ میں جا رہا ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں کہ فائر آئے گی ہماری جان چلی جائے گی۔ فائرنگ جو ابھی بند ہوئی ہے سبھی اس میں خوش ہو گئے ہیں کہ فائرنگ بند ہے، ہم آرام سے سوتے ہیں تو چین سے ہم اپنا کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو فائرنگ بند ہے سبھی دنیا خوش ہے اس چیز میں۔ جی کتنے لوگ جو مر گئے، جن کی ٹانگیں چلی گئی، کسی آنکھیں چلی گئی؟ کچھ ایک میرا بھائی تھا میرے سے بڑا تھا، اس کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میرے گاؤں میں بہت آدمی ہے جن کی ٹانگ نہیں ہے، کچھ کے بازو نہیں ہے، تو کچھ کی آنکھ جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں حریت قائدین نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر یقینی بنانے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام امن کے سب سے زیادہ خواہاں ہیں، کیونکہ وہ گزشتہ 74 برس سے بالعموم اور پچھلی 3 دہائیوں سے بالخصوص جس ڈر اور خوف کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مسئلے کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تناظر میں حل کیا جائے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ یہ بھارت کی بار بار کی دھوکہ دہی ہے جس نے جنوبی ایشیا کو ایٹمی تصادم پر پہنچا دیا ہے۔ حریت قائدین کا کہنا ہے کہ کنٹرول لائن پر جنگ بندی کا اعلان کافی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے بامقصد بات چیت سے پہلے سیاسی قیدیوں کی غیر مشروط رہائی عمل میں آنی چاہیے۔ کالے قوانین کی منسوخی اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے تمام شہری، انسانی اور سیاسی حقوق بحال ہونے چاہیے۔ حریت قائدین نے امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ اور عالمی ادارے کشمیریوں کی منظم نسل کشی اور دیگر مظالم کو روکنے کے لیے اقدامات کریں گے۔